सब पढ़ लिया मैंने। सारे सेक्शन याद कर लिए, सारे केस लॉज याद कर लिए, सारी चीजें याद है मुझे, प्रोविजन याद है, आर्टिकल याद है, सब याद है। अब मुझे मिलेगा 25 से 30 लाख का एक हैंडसम सैलरी वाला पैकेज। क्या लगता है, सही बोल रहा हूँ मैं? इज इट ट्रू? So the answer is absolutely no, because just reading the bare acts or attending the classes will not help you to get any kind of benefits in your law career. So hey everyone, I am Aryan Parmar. I will be telling you about the five most important competition for you, for a law student who should must participate and compete in your law school journey. So let's begin it. So, our first competition is client counseling competition. Basic competition, every law student must participate. क्योंकि अगर आपको लिटिगेशन करना है, किसी को उसमें फील्ड में भी जाना है, कॉर्पोरेट किसी में भी, आपको अपने क्लाइंट, क्लाइंट मतलब भगवान, क्लाइंट नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे। आपको अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करना, उसकी बातों को समझना, उसे सॉल्यूशन देना, बहुत ही बेसिक नीड है आपके प्रोफेशन की। So, in this competition, there will be two participants. One will be the legal advocate who will be providing the legal advice, and another will be a client who is facing a legal issue. In this competition, you will learn how to ask questions, how to listen, observe, build trust in the client, and follow your ethics, and also provide a solution on the spot as a real advocate. You will be given a case scenario before the competition. You will meet the client. You will understand the issue of the client. You will guide them professionally. And this will evaluate your performance on the basis of how you communicate with the client, how you are maintaining the relation, how you're building the trust, how you're staying ethical and analyzing the issue. Then comes the mediation and arbitration competition. It means solving your fight or issues, legal issues outside the courts. कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो, काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट की प्रोसेस होती है, पहले फाइल करो, फिर डेट आएगी, फिर आप प्रेजेंट हो उसमें। इतने प्रोसेस से अच्छा आप बाहर एक मीडिएटर ले लो या आर्बिट्रेटर ले लो, जो आपकी प्रॉब्लम्स को साथ बैठ के एक सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन पे आपको सॉल्व कर देगा। So this is all about resolving the conflicts without going to the courts. Mediation is like a peacemaker, and arbitration is more like a mini court, where there will be an arbitrator and you both will be sitting together for the resolution. You will develop skills like negotiations, teamwork, and understanding both the sides of the problem. You will play roles like mediator, arbitrator, or a client. Both sides get case and must reach a solution under the given time period. In mediation competition, there will be three-member team, and in arbitration, there will be 2 to 3 advocates as it participants. Then comes my most favorite competition, that is trial advocacy. जितनी भी आप तक आज तक मूवी देखी है, जज साहब और जो कानून की किताब, ये सब होता है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब में होता है। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके करियर की, जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब आप करियर स्टार्ट करते हो तो आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाते सीधा। आपको जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सेशंस कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट के ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है, क्या एथिक्स होते हैं, कैसे आप अप्रोच करते हो, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक सारी चीजें इसमें एज पर द रियल प्रोसीजर होती है। यू विल गेट टू एग्जामिन द विटनेसेस, और यू विल हैव टू ऑब्जेक्ट, रेजेस ऑब्जेक्शंस। कोर्ट रूम ड्रामा क्रिएट करना होता है बेसिकली एक। And you will get the cases and the facts of the statements of all the witnesses before the competition. You will prepare the memorial of both the sides, prosecution and defense. Then in the oral rounds, you will present your arguments, you will cross the witnesses, you will achieve the witnesses. So this is the basic understanding of this competition. The team competition will be 3 to 5. Some competition requires three participants, such as two will be pleaders and one will be researcher. And in some competition, they might require witnesses also from your side. So there will be 5. Then comes the parliamentary debate and MUNs. When you speak your mind, debates and MUNs test how quickly you understand and react or speak your thoughts or on spot. They are fast, logical, and sometimes wild. As you must have observed the sessions of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, how they are. So basically वही सेम चीज parliamentary competitions में होता है। यहाँ पे आप अपने public speaking skills, logics,
हाउ टू हैंडल द प्रेशर, जो सबसे बेसिक चीज आपको अपनी लॉ करियर में आपको सीखनी चाहिए कि प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाता है। आप कल को अगर इंटर्नशिप में जाओगे तो आपको रोज एक होगा शाम को कि भाई अब मुझे कल अपने सीनियर रिपोर्ट करना है, सुबह आओगे, दिन भर काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको हैंडल करना चाहिए। हैंडल मैनेजमेंट सब आपको सीखना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें आपको ये किताबें नहीं सिखाएगी, ये आपको कॉम्पिटिशन सिखाएंगे, आपको नेटवर्किंग सिखाएंगे, आपका सीवी कैसे बिल्ड होगा। ये किताब पढ़ के क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। किताब पढ़ के होगा, दैट इज फाइन, बट जो रियल वर्ल्ड है उसमें उतरने के लिए आपको कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए, आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, आपके फील्ड में सीनियर से मिलना चाहिए। सो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में you will there will be a motion, you have to prepare for it, either you have to speak for the motion or against the motion. Then comes the MUN, MUN वही मॉडल यूनियन नेशन जो आपने अपने स्कूल्स में भी किया है, अब आप कॉलेजेस में करोगे, यू विल रिप्रेजेंट योर कंट्रीज and debate, or there will be a debate on global issues on a formal rules. टीम फॉर्मेट वही है, डिबेट में 2 से 3 लोग एक टीम में होते हैं। एमयूएन में आप सोलो भी जा सकते हो, तो पेयर में भी जा सकते हो आप। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन ऑफ एनी लॉ स्कूल, when I'm saying it, I really mean it। जितनी भी लॉ फर्म्स होती है, टीयर 1 टीयर 2, वो सारे ऐसे लोगों का सीट सिलेक्ट करती है जहां पे जिन बच्चों ने अच्छे मूड्स कर रखे हैं, जीत रखे हैं। कि मूड इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग स्किल्स, इट ऑल्सो requires research skills, observational skills, logical skills, and pragmatic skills. So it is the most prestigious competition of any law school. You will be arguing like you are in a Supreme Court. There will be no witnesses. You will learn how to research, draft memorials, deliver oral rounds, and you will get a लीगल प्रॉब्लम इन एडवांस। 1-2 महीने पहले आपको अपनी प्रॉब्लम मिल जाती है, इससे आप दोनों साइड से मेमोरीज बनाते हो, फिर आप अपने कंपटीशन जाते हो, फिर आप वहां पे सबमिट करते हो, फिर कंपटीशन से पहले आपको दूसरी टीम्स के मेमोरियल एक्सचेंज होते हैं ताकि आपको मालूम पड़े दूसरी टीम्स ने क्या प्रिपेयर किया है, उनकी फाइल में क्या लिखा हुआ है। फिर पैनल ऑफ जजेस होते हैं, वो आपको इस चीज पे इवेलुएट कर लेंगे कि आपको कितनी फैक्ट्स की नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, कितना आप कॉन्फिडेंट थे, पढ़ के तो नहीं बोल रहे हो, बिना पढ़े बोल रहे हो। दैट्स ऑल। टीम फॉर्मेट 3 लोगों का होता है इसमें, 2 लीडर, एक रिसर्चर। तो ये टॉप 5 कंपटीशन है जो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सीवी बिल्ड करेंगे, दैट इज फाइन। बट जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो सारे कॉम्पिटिशन से होगा, आपके सीवी बिल्ड होगा, अच्छा आपकी कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स सुधरेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेगी, आपका एक हेजिटेशन निकलेगा अंदर से। सो टाइम फॉर अ बोनस टिप्स। पहला, एक स्मॉल कॉलेज से या इंटर कॉलेज से स्टार्ट करिए आप। पहले इंटर कॉलेज, फिर इंट्रा कॉलेज, फिर नेशनल्स, फिर इंटरनेशनल मूव्स। कभी भी आप फर्स्ट ईयर में रहते हुए नेशनल या इंटरनेशनल में जाओगे, तो हार के आओगे, बेइज्जती अलग होगी और कॉन्फिडेंस गिरेगा वो अलग। सारे कॉम्पिटिशन आपकी एक अलग अलग स्किल्स डेवलप करते हैं। कॉम्पिटिशन भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मूड, या एनवायरमेंटल मूड, कॉन्ट्रैक्ट्स पे मूड होता है, साइबर पे होता है। तो आप सारी चीजों को आप एक बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका फोटे क्या है। ऑल्सो डोंट जस्ट एम फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन, फोकस ऑन लर्निंग एंड नेटवर्किंग। जीतता जो है उसे गुरूर आ जाता है, ईगो आ जाएगा कि हाँ भाई मैं जीत के आया, पर जो हारेगा ना, वो बैठ के चीजों को सोचेगा कि मैंने कहाँ गलती करी, क्या नहीं किया, मैंने क्या करना चाहिए था। अगर आप जीत जाओ, अच्छी बात है, वो आपका अचीवमेंट है, बट अगर आप हार जाओ तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको और मेहनत करनी है और अपनी गलतियों को सुधारना है। तो ये सारी चीजें थी। दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड फ्यूचर। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।